Hello students, this is the second lecture for chapter number 2 electric potential and capacitance. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो हियर डाइपोल इज गिवन माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो ये हो जाएगा उसका एक्सिस. कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. सो लेट अस कंसीडर दैट दिस वन इज पॉइंट P at which electric potential due to this dipole is to be find out. Suppose the distance between center O and point P is say R. Okay, so R is the distance between point P and point O. So what is the electric potential at point P? So electric potential at point P is nothing but that is electric potential at point P produced by the positive charge plus electric potential produced by the negative charge. Okay, now what is V plus? V plus is the electric potential due to positive charge and electric potential due to negative charge, that is V minus. तो सबसे पहले देखते हैं what is the distance between positive charge and point P, negative charge and point P. तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है. तो प्लस Q एंड P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज R माइनस A. सेम वे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन माइनस Q एंड पॉइंट P, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज R प्लस A. सो दीज आर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड प्लस Q चार्ज एंड P एंड माइनस Q चार्ज. उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा K, दिस वन इज Q डिवाइडेड बाय R माइनस A प्लस दिस वन इज K minus Q divided by R plus A. So here we take common, that is KQ. यहाँ पे आ जाएगा 1 divided by R minus A. ये हो जाएगा minus 1 divided by R plus A. So take an LCM. तो यहाँ पे हो जाएगा K into Q. LCM आ जाएगा R minus A into R plus A. So here this one is R minus A into R plus A. Okay, यहाँ पे क्या हो जाएगा R plus A minus R माइनस A. इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस वन इज KQ. ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा R माइनस A R प्लस A. सो दैट बिकम्स R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. नाउ दिस वन इज R प्लस A, तो ये हो जाएगा R प्लस A माइनस R प्लस A. सो दिस प्लस एंड माइनस आर गेट कैंसल. सो फाइनली वी गेट K इंटू Q. यहाँ पे हो जाएगा 2 times A divided by R square minus A square. Now what is 2A into Q? So 2A into Q is called dipole moment. So P is equal to क्या हो जाएगा, 2A into Q, that is called electric dipole moment. तो हमारा आंसर आ जाएगा K into Q, sorry K into P divided by R square minus A square. So that is the potential on the axis. Okay, so this is V is equal to Kp divided by R square minus A square. If we put the value of K, so K is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0. So 1 upon 4 pi epsilon 0 P divided by R square minus A square. Okay, so that is the formula of electric potential on the axis. If we take R is very large compared to A, so we can say that for short dipole, for short dipole के लिए क्या हो जाएगा, this distance R is very large compared to the A. So R is very large compared to A. So here we neglect A in the denominator. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V axis for the short dipole, that is equal to K P divided by R square. Otherwise you can say that 1 upon 4 pi epsilon 0 P divided by R square. So that is the formula of electric potential on the axis of dipole. चलो next आएगा electric potential on equatorial line. Now next is electric potential on equatorial line. So this one is the dipole plus Q charge minus Q charge. Separation between them is 2A and O is the center of the dipole. Now let us consider one point P which lies on the equatorial line. So ये हो जाएगा point P which lies on the equatorial line at a distance R from the center of the dipole. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड माइनस Q चार्ज, ये डिस्टेंस हो जाएगा
ओके, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो ये डिस्टेंस हमें पता है, ये ए हो जाएगा, ये भी कितना होगा, ए होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड नेगेटिव चार्ज इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सेम वे ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। So now at point P, electric potential due to this dipole that is equal to electric potential at point P due to positive charge plus potential due to negative charge। जो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा k q डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस k माइनस क्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म सेम हो जाएगी, साइन ऑपोजिट होगी, आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटर फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ऑलवेज 0। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर आप पॉइंट कहीं पर भी कंसिडर कर लो, मतलब कि ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेटर, सो दैट इज योर इक्वेटर। ओके, आप कहीं पर भी पॉइंट कंसिडर करो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर कोई भी पोजीशन पे, तो वहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। सो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0। नाउ थर्ड वन, नेक्स्ट आएगा एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इट इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कोई भी एक जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सो हियर फिगर इज गिवन। सो यहाँ पर क्या है, एक डायपोल दिया हुआ है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। दिस वन इज द सेंटर ऑफ द डायपोल। सो ये सेंटर O एंड माइनस क्यू चार्ज जो है उसका डिस्टेंस हो जाएगा a, एंड सेंटर एंड प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, a। नाउ दिस वन इज द पॉइंट P, वहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P इज r1 एंड पॉइंट P एंड प्लस Q2 जो प्लस Q चार्ज है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट P इज r। सो लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होगा, सो वी नो दैट V इज इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा K Q divided by this one is R2 plus K minus Q divided by R1. So finally हमें मिलेगा that is K into Q into the bracket 1 by R2 minus 1 by R1. So that is equation number 1. So V is equal to कितना आया, K into Q 1 by R2 minus 1 by R1. Now let's find the value of R2 and R1 using geometry. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये क्या है, R1 है। R1 is the distance between point P and minus Q charge. Here R is the distance between point P and center O. Now ये जो गैप रहेगा वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। That means अगर हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसी जो दो लाइन मिल रही है, अगर दोनों के बीच का एंगल बहुत ही कम होगा तो क्या हो जाएगा, सो इफ वी टेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन लाइन टू अनदर लाइन, कोई भी एक लाइन से दूसरी लाइन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो लाइक दिस वे, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन होगी वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि ये दो लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस वे। ओके, अभी देखते हैं कि इसको नाम मैं दे देता हूँ A, ये हो जाएगा हमारे लिए B एंड दिस वन इज सेंटर O। चलो ये हो जाएगा सेंटर O। चलो अब हम क्या करेंगे, हम AP जो है उसमें से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर, OP के ऊपर। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दिस वन इज दी परपेंडिकुलर, वी कैन से दैट AN। सो AN is the perpendicular which is drawn on OP line।
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। चलो ये जो है मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है, थीटा हो जाएगा। सो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ए एन ओ, हियर मेजर एंगल एन इज 90 डिग्री, वो राइट एंगल हो गया, मतलब कि ए ओ होगा क्या, वो हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेनस। तो ओ एन का वैल्यू कितना आएगा, तो ओ एन का वैल्यू हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा से। सो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट इज क्या हो जाएगा, ओ एन होगा, ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, वो हो जाएगा ए। सो ओ एन का वैल्यू कितना आएगा, ओ एन का वैल्यू आएगा ए कॉस थीटा। कितना आएगा, ए कॉस थीटा। अभी यहाँ से हम देखेंगे तो R1 कितना होता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि R1 का वैल्यू जो है वो कितना होगा, वो Pn जितना होगा, तो होगा ना। व्हाट इज Pn, Pn वी कैन राइट On प्लस OP। Pn कितना होगा, On प्लस OP जितना होगा। ना व्हाट इज On, On का वैल्यू कितना आया, दैट इज इक्वल टू आया a cos थीटा। एंड नाउ व्हाट इज OP, OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। So now we are getting value of R1. R1 कितना मिलेगा, that is a cos theta plus R. Same way, let's find value of R2. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, PB से, किसके ऊपर, PO के ऊपर। तो अगर हम यहाँ से उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। So this one is 90 डिग्री, बराबर है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, उसको नाम देते हैं से एन डैश। सो एन डैश, बी एन डैश इज दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑन ओपी। ओके, तो यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर देखेंगे, कौन सा ट्राइंगल, ओ एन डैश बी, उसके अंदर ये जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड होगा। एंड फिर से ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो ओ एन डैश का वैल्यू कैसे आएगा, तो उसके जैसे ही हम कॉस थीटा लेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अभी आना चाहिए ओ एन डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज इक्वल टू ए। तो ओ एन डैश जो है उसका भी वैल्यू कितना आएगा, उसका भी वैल्यू आएगा ए कॉस थीटा जितना ही आएगा। कितना आएगा, ए कॉस थीटा। तो अभी देखते हैं कि R2 का वैल्यू कितना आया। सो R2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, R2 इज इक्वल टू, R2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू आएगा P एन डैश। नाउ व्हाट इज P एन डैश, P एन डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं OP माइनस O एन डैश। कितना आएगा, OP माइनस O एन डैश, बराबर है। तो इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो OP कितना है, दिस वन इज R, O एन डैश कितना होगा, दैट इज इक्वल टू A cos थीटा। तो यहां से देखते हैं तो हमें R1 एंड R2 की वैल्यू मिलती है, कितनी आती है, तो R1 मिलेगा A cos थीटा प्लस R एंड R2 कितना मिलेगा, R माइनस A cos थीटा। सो लेट्स पुट दिस टू वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा K इंटू क्यू इंटू दी ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय R2। R2 हम क्या लिखेंगे, R माइनस A cos थीटा, ओके, माइनस 1 अपन R1 कितना आएगा, A cos थीटा प्लस R, वी कैन राइट R प्लस A cos थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल। अभी थोड़ा एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा K इंटू क्यू। चलो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, सो दिस वन इज R माइनस A cos थीटा, ये हो जाएगा R प्लस A cos थीटा, मीन्स हमारा आंसर आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चलो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा R प्लस A cos थीटा माइनस इंटू द ब्रैकेट R माइनस A cos थीटा। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R माइनस माइनस प्लस A cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, K इंटू क्यू, ये मिलेगा 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज Q इंटू 2A, तो ये हो जाएगा हमारे लिए डाइपोल मोमेंट, मतलब कि हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू K इंटू P इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। अगर K की वैल्यू रख दें तो हमें मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस वन इज P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर
cos square theta. Okay, cos square theta. So that is the general formula for electric potential at any point P. तो इसको लिख दो, इसके आगे भी और कुछ डिस्कस करते हैं। चलो, ये है हमारे लिए जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर ये डायपोल शॉर्ट है, दैट मींस फॉर शॉर्ट डायपोल, A कितना हो जाएगा, सॉरी R कितना होगा, R इज वेरी लार्ज कंपेयर टू A, मतलब कि डिनोमिनेटर में से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अदरवाइज वी कैन राइट K इंटू P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल। अभी यहाँ पर भी देखें तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू कॉस थीटा। तो अगर इसको भी लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू K इंटू वेक्टर P डॉट R कैरेट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ व्हाट इज P कैरेट, सॉरी वेक्टर P डॉट R कैरेट, वेक्टर P डॉट R कैरेट इज नथिंग बट दैट इज P cos थीटा। ओके, सो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। अभी हमने पहले जो देखा था कि एक्सिस पर कितना होता है एंड इक्वेटर पर कितना होता है, तो वही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। तो कैसे, तो हमें पता है कि एक्सिस पे होगा तो क्या होगा, ऑन दी एक्सिस एंगल थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मीन्स हमारा पोटेंशियल हो जाएगा V ऑन दी एक्सिस दैट इज इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, बराबर है। चलो सेकंड देखेंगे कि इफ पोटेंशियल इफ पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, मतलब कि इक्वेटर पे होगा तो क्या होगा, सो ऑन इक्वेटर पे क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मींस cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कि हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा 0। ओके, सो यही फॉर्मूला हमें आगे की थ्योरी में भी मिली थी, वही इक्वेशन जो है वो हम इस फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हैं। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए पॉइंट लाइक चार्ज के लिए, ओके, फॉर ए पॉइंट लाइक चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज V क्या था, KQ डिवाइडेड बाय R, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आएगा। एंड फॉर डाइपोल, तो डाइपोल के लिए क्या होगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो नेक्स्ट आएगा क्वाड्रुपोल। सो क्वाड्रुपोल एक सिस्टम है, इसको हम एज एन एग्जाम्पल ही कंसिडर करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रुपोल, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा व्हेन टू डाइपोल्स लाइंड अप इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द सिस्टम इज फॉर्म इज नोन एज क्वाड्रुपोल। तो यहाँ पे दो डाइपोल को क्या हमने कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। सो कंबाइन हमने यहाँ से नेगेटिव चार्ज के ऊपर किया है, तो ये फर्स्ट डाइपोल, ये सेकेंड डाइपोल, ऐसी सिस्टम एक फॉर्म करेगा। इस सिस्टम को हम बोलेंगे क्वाड्रुपोल। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास टोटल 3 चार्ज हो जाएंगे, ये जो +q चार्ज होंगे और जो सेंटर वाला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2q चार्ज, बराबर है। ओके, सो ये जो सिस्टम होगा वो हमारे लिए हो जाएगा क्वाड्रुपोल। ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज कितना लेना है, हमें यहाँ पे d लिया है। ओके, तो ये क्वाड्रुपोल है तो उसका भी मोमेंट होगा जिसको बोलेंगे हम क्वाड्रुपोल मोमेंट। क्वाड्रुपोल मोमेंट को हम डिफाइन करेंगे 2q इंटू डी स्क्वायर। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज एंड q हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर एनी वन डाइपोल। सो क्वाड्रुपोल मोमेंट हो जाएगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डी स्क्वायर। नाउ बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल लेट्स फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स एक्सिस एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये हो जाएगा पॉइंट P which lies on the axis of the quadrupole and the distance between center and point P is Z. So now let's find electric potential at point P due to this quadrupole. तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये सिस्टम हो जाएगा which possess total 3 charges. चार्ज नंबर 1, 2 एंड 3 हमने नाम भी दे दिया है।
तो ये तीन क्या करेंगे, अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑब्टेन करेंगे. सो वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, माइनस टू क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, एंड देन उसका हम सम करेंगे तो हमें पोटेंशियल एट पॉइंट पी मिल जाएगा. सो लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी. तो सबसे पहले आएगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो उसका नाम देंगे हम V1. सो V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज. डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लस क्यू चार्ज एंड पॉइंट P हमारे लिए हो जाएगा Z प्लस D. तो V1 हमें मिलेगा दैट इज K प्लस क्यू डिवाइडेड बाय Z प्लस D. ओके, चलो सेम वे ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो सेकेंड चार्ज कितना है, माइनस टू क्यू है, तो उसकी वजह से जो हमें मिलेगा V2 मिलेगा. तो V2 का आंसर आएगा माइनस टू K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय Z. एंड फाइनली ये थर्ड चार्ज हो जाएगा, तो उसकी वजह से डिस्टेंस कितना आएगा, तो उसकी वजह से डिस्टेंस आएगा Z माइनस D. तो हमें V3 मिलेगा. सो V3 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय Z माइनस D. सो नाउ वी हैव V1, V2 एंड V3. सो टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे. सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस क्वाड्रुपोल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, KQ कॉमन निकला जाएगा. सो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय Z प्लस D माइनस टू डिवाइडेड बाय Z, एंड फाइनली क्या आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z माइनस D. तो ये हमें मिलेगा KQ एज इट इज. जो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे Z प्लस है, Z माइनस D, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा Z स्क्वायर माइनस D स्क्वायर. चलो यहाँ पे क्या आएगा, Z माइनस D प्लस यहाँ पे जाएगा Z प्लस D. ओके, एंड माइनस टू डिवाइडेड बाई Z एज इट इज. तो इसका आंसर हमें मिलेगा, सो दैट इज K इंटू क्यू. चलो यहाँ पे क्या होगा, डी डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2Z डिवाइडेड बाय Z स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय Z. तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, Z इंटू Z स्क्वायर माइनस D स्क्वायर एलसीएम आएगा. सो दैट इज K इंटू क्यू. यहाँ में डिनोमिनेटर में मिलेगा that is Z स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इंटू Z. तो यहाँ पे हो जाएगा 2Z स्क्वायर माइनस 2Z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2D स्क्वायर. सो दैट इज दी थिंग. चलो पे क्या हो जाएगा, 2Z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा, सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2D स्क्वायर. सो K इंटू क्यू, this one is 2D square divided by Z square minus D square into Z. So that is the electric potential. तो इसको आगे देखेंगे. तो suppose Z is very large compared to D. ओके, तो यहाँ पे D जो हो जाएगा उसको निग्लेक्ट करेंगे, तो हमें पोटेंशियल मिलेगा V is equal to K into Q. This one is 2D square into Z into Z square. तो ये हो जाएगा ZQ. Okay, so that is the electric potential if Z is very large compared to D. तो ये हो जाएगा हमारे लिए potential due to quadrupole at point P which lies on the axis of quadrupole. Our next topic is potential due to collection of charges. सबसे पहले आएगा discrete charges. Now we know that discrete charges means countable, so we can count these charges with our naked eyes. तो वो हो जाएगा हमारे लिए discrete charges. So consider a system of charges in which number of charges are there. So here Q1, Q2, Q3, Q4, these are the 4 charges. Now these are the point like charges. तो point like charges के लिए हमें पता है कि V is equal to कितना आएगा, KQ divided by R आएगा. So P1 पे potential कितना होगा, so P1 पे potential हो जाएगा potential due to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 charge. So in general we can say that potential at point P Vp that is equal to sigma Vi. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि V is equal to क्या हो जाएगा, KQ divided by R. So here K means 1/4 pi epsilon 0 sigma I. Okay, this one is QI divided by RI. तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल सोर्स चार्जेस.
अभी मान लेते हैं कि सपोज आपको पोजीशंस दिए हैं, ओके, सो हियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन, Q1, Q2, Q3, Q4 सबके पोजीशंस आपको दिए हैं एंड पॉइंट P का भी पोजीशन हो जाएगा R। तो ऐसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए जो RI जो है, हमारे लिए जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, सो वी कैन से दैट डिस्टेंस R डैश, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पर्टिकुलर चार्ज, सो दैट इज इक्वल टू R माइनस RI। तो वह क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सो दैट इज अवर डिस्टेंस। सो इन दिस केस वी कैन राइट V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 sigma I, this one is QI divided by vector R minus RI. Okay, so that is the potential when coordinates are given. Now second आएगा for a continuous charge, for a continuous charge ओके, नाउ कंटिन्यूअस चार्ज में पता है कि वो 1 डायमेंशनल बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी एंड 3 डायमेंशनल बॉडी हो सकता है। सो इन जनरल वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाय r। ओके, इंटीग्रेशन dq डिवाइडेड बाय r, वायर r क्या हो जाएगा, r इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एलिमेंट्री चार्ज dq। सो हियर वी कैन राइट वेयर R is the position of the point P from elementary particle, elementary charge dq। ओके, नाउ dq जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 1 डायमेंशन, सो बॉडी कुछ भी हो सकता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो अकॉर्डिंगली हमें क्या मिलेगा, dq मिलेगा। सो सपोज बॉडी कैसा है, 3 डायमेंशनल है, दैट मीन्स व्हाट कि वॉल्यूम चार्ज दिया है। सो फॉर वॉल्यूम चार्ज dq क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा रो इंटू dv। ओके, dq क्या हो जाएगा, रो इंटू dv। सो अकॉर्डिंगली हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 इंटीग्रेशन रो dv डिवाइडेड बाय r। सेम वे सपोज सरफेस चार्ज दिया है, तो सरफेस चार्ज होगा तो क्या होगा, सो फॉर अ सरफेस चार्ज हियर वी कैन से दैट dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू dA। ओके, सो फॉर अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, तो यहां से हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 इंटीग्रेशन सिग्मा dA डिवाइडेड बाय r। एंड सेम वे फॉर अ लाइन चार्ज, here dq can be written as lambda into dl। सो हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0 इंटीग्रेशन lambda dl डिवाइडेड बाय r। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल फॉर अ कंटिन्यूअस लाइन चार्ज। अभी इसी के बेस पे थोड़े एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल कि मान लेते हैं कि आपको एक स्क्वायर दिया है। सो दिस वन इज अ स्क्वायर ABCD on which here small charge q is placed at each vertices of the square। here side length ले लेते हैं small a। now let's find out the electric potential at the center of the square। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे लिए सेंटर। तो सेंटर पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड करना है। सो दिस वन इज सेंटर O, बराबर है। तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं, दिस वन इज A, B, C एंड D। So once again question repeat करते हैं कि here square is given and at each corner of the square here small q charge is placed। here side length is small a। we are going to find the potential at point O। तो यहाँ पर देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना है, साइड लेंथ है a, मतलब कि डायगोनल कितना होगा, √2a। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन एनी वर्टेक्स एंड सेंटर कितना हो जाएगा, दैट इज a बाय √2। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, a बाय √2। ओके, सो हर एक कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a√2। हर एक कॉर्नर पे चार्ज कितना है, सेम चार्ज है। मतलब कि पोटेंशियल एट सेंटर वो कितना हो जाएगा, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स V1।
ओके 4 टाइम्स v1, क्योंकि यहाँ पे सबका चार्ज सेम है एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्नर वो भी कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 इंटू वी1 कितना हो जाएगा, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस से आर, सो दैट इज इक्वल टू 4 के क्यू, आर हो जाएगा a बाय रूट 2, मीन्स आपका आंसर आएगा 4 रूट 2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर, सो दैट इज द पोटेंशियल एट सेंटर ओ ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा अच्छा वाला। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज Q1 is equal to 1 microcoulomb, Q2 is equal to -2 microcoulomb, Q3 is equal to -1 microcoulomb are placed at point 1 0 0 -1 2 3 2 -1 1. Find out the potential at point 1 -2 and -1. So here three charges are given, they are placed at the 3 points, say R1 R2 and R3। आपको फाइंड करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P whose positions are 1 -2 and -1 with respect to origin। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, दे आर द सोर्स चार्ज, और सभी के वजह से पोटेंशियल मिलेगा। आपको पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड करना है, इस पोजीशन पे फाइंड करना है। सो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके चलो V1 सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो V1 के लिए क्या होगा, तो V1 इज इक्वल टू वी कैन राइट के Q1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R माइनस R1। ओके ये हो जाएगा हमारे लिए V1। नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R माइनस R1। तो देखो R माइनस R1 कितना आएगा, सो R माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू, सो R इज 1 -2 -1 -0 0 0। तो ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, 1 -0 इज इक्वल टू 1 -2 -0 इज इक्वल टू -2 एंड -1 -0 इज इक्वल टू -1। फिर इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम लेंगे मोड ऑफ R माइनस R1 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1। तो आंसर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें V1 मिल जाएगा। तो V1 हमारा आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। सो आंसर इज 9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 वोल्ट। सो दैट इज V1। चलो V2 एंड V3 डायरेक्टली फाइंड करते हैं। तो देखो V2 क्या आएगा, सो V2 इज इक्वल टू, चलो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के Q2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ R माइनस R2। चलो दैट इज इक्वल टू के, दिस वन इज Q2। चलो मोड R माइनस R2 डायरेक्टली फाइंड करते हैं तो क्या होगा, R माइनस R2, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस -1 दैट इज 2 स्क्वायर। चलो प्लस -2 दैट इज -4 होल स्क्वायर एंड फाइनली आएगा -1 -2 -1 -3 दैट इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर। ओके सो आंसर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू के का वैल्यू रखेंगे। सो के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q2 कितना है, -2 माइक्रोकूलम। तो माइनस जो हम आगे लगा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, दिस वन इज 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, तो 4 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 36। तो 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6। ओके सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो आंसर आएगा -3 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सो दैट इज V2। चलो फाइनली देखते हैं कि V3 कितना आएगा। सो V3 इज इक्वल टू क्या होगा, के Q3 डिवाइडेड बाय R माइनस R3। सो के इंटू Q3, चलो R माइनस R3 कितना आएगा, तो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 -2 तो दैट इज इक्वल टू 1 -2 दैट इज इक्वल टू -1। सो -1 होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा अगेन -1 होल स्क्वायर एंड -1 दैट इज -2 स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q3 भी कितना है, -1 है तो यहाँ पे लिख के माइनस,
सो 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, सो 1 + 1 + 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो हमारा आंसर आएगा -9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वोल्ट। सो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 करेंगे। सो V1 कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। तो ये दोनों सेम हुए, तो हमारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3 दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 वोल्ट। ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन। Now the next topic is electric potential difference in uniform electric field. So consider that is a uniform electric field, and here a particle, a charge q is displaced in uniform electric field from A to B. तो वो A to B इधर जा रहा है, so A to B जो है वो इधर जाएगा। So this one is initial position A, ये हो जाएगा final position B. Okay, so that is the final position B. So here particle is displaced from A to B in a uniform electric field. Okay, तो अभी देखेंगे, तो हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज VB minus VA. सो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू माइनस E dot AB, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट AB। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस E magnitude of E magnitude of displacement AB into cos theta. Here theta is the angle between AB and E. तो AB इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ आएगा, so means we can say that the angle between AB and E is theta. Okay, now what about AB cos theta? तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा उसका एंगल, सो ये एंगल थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इतना मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे लिए क्या, एडजेसेंट साइड, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ से cos थीटा देखें तो cos थीटा कितना होगा, सो cos थीटा इज इक्वल टू ABC ले लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB। ओके, तो AC क्या होगा, AC क्या होगा, दैट इज इक्वल टू AB cos थीटा। सो AB cos थीटा इज नथिंग बट दैट इज AC। AC मीन्स व्हाट, इतना डिस्टेंस मान लेते हैं ये डेल्टा x है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू delta x. So from the figure here we can say that AB cos theta that is equal to delta x. तो ये हो जाएगा minus mode of E into delta x. So that is VB minus VA. So VB minus VA जो होगा वो कितना हो जाएगा, E into delta x. That is nothing but it is a distance between A and B in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इस वन, तो ये हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E वो कितना आ जाएगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ V आ जाएगा दैट इज डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा x। वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अभी देखिए इसके बेस पे आपको क्या मिलेंगे, दो केस मिलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। चलिए दो केसेस देखते हैं। हमारे पास था VB minus VA दैट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x। अभी देखते हैं कि सपोज डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल पैरेलल है, दैट मीन्स AB इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इनिशियल पॉइंट A होगा, फाइनल पॉइंट B होगा। सो ये पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम A टू B। तो इस केस के अंदर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, VB minus VA दैट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x, ऐसा मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, VB माइनस V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x। सपोज AB जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, पैरेलल हो रहा है तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, VA इज इक्वल टू VB होगा, बराबर है। तो दोनों फिगर को देखें तो ऐसा कुछ हमें मिल सकता है। सो फर्स्ट फिगर में देखिए A से B पर जा रहा है, तो VB माइनस VA क्या हो रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि A के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब कि क्या होगा, एज वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे उसी के पैरेलल, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सो एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे हम नोट करके लिख देते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको याद रखनी है। सो ये लिखना है कि हमारा फर्स्ट नोट क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेज। In the direction of electric field, potential is always decreases. ओके, नंबर 2 क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। ओके, इन दी परपेंडिकुलर direction of electric field potential V remains same, so V remains same. Okay, there is no change in potential. तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ अभी एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, VB माइनस VA क्या होगा, so we know that VB minus VA that is equal to work done due to external force starting from A to B per unit charge। ओके, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू हमें पता है कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dr इतना आएगा। सो इन 3 डायमेंशन देखेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, ये करेंगे इंटीग्रेशन, दिस वन इज XA टू XB E dx प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा YA टू YB E dy प्लस इंटीग्रेशन ZA to ZB E dz। Okay, so that is the value of potential difference. So next example is electric field is given, E is equal to 2I plus 3J volt per meter. Find VA minus VB between the 2 points A and B whose position vectors are RA and RB। देखो यहाँ से हम दो तरीके से कर सकते हैं, हमें VA माइनस VB पूछ रहा है, तो हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है PD इज इक्वल टू दैट इज VB माइनस VA, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम VA माइनस VB भी कर सकते हैं। तो वो कहाँ से हो जाएगा, RA टू RB हो जाएगा, बराबर है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलो हम VB माइनस VA करेंगे, देन उसका उल्टा कर देंगे, मतलब कि ऑपोजिट नेगेटिव कर लेंगे, तो हमें VA माइनस VB मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA क्या होता है, तुम्हें पता है, तो डेट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, दिस वन इज x1 टू x2, सो डेट इज x1 टू x2 E dx प्लस इंटीग्रेशन y1 टू y2 E dy प्लस इंटीग्रेशन z1 टू z2 E dz। ओके, चलो ये हो जाएगा, बस सबकी वैल्यू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस, दिस वन इज x2 माइनस x1 कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस ये हो जाएगा EY, यहाँ पे मिलेगा y2 माइनस y1 एंड प्लस EZ, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। ओके, चलो सबकी वैल्यू रख देंगे, तो EX कितना है,
तो ई एक्स है हमारे पास दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 2 x2 माइनस x1, x2 कितना होगा 2, x1 कितना है 1, सो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। चलो सेम वे ई वाई कितना होगा, तो ई वाई हो जाएगा हमारे लिए 3, y2 माइनस y1, हियर y2 इज 3, y1 इज 2, सो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 1 प्लस z कितना आएगा, तो z तो ई जेड तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 0। तो ये कितना आएगा दैट इज इक्वल टू -3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट। तो ये वैल्यू किसकी है, दैट इज VB माइनस VA, देयरफॉर VA माइनस VB कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। Here the uniform electric field of magnitude 100 volt per meter in a space is directed along y is equal to 3 plus x. Find the potential difference between the points A 31 to point B 13. देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं दिया है। ओके, हियर दिया गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एंड इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग y इज इक्वल टू 3 plus x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर डायरेक्शन देखें तो ये कौन सा फॉर्मूला है, तो y इज इक्वल टू 3 plus x, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हम लाइन ड्रॉ करने जाए तो क्या होगा, सो इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, एंड x इज इक्वल टू -3 लेंगे तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें ओके x एंड y का, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा, x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब कि हमारा लाइन जो है वो ऐसे आएगा। ओके, सो इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ऐसे हमें मिल सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, मीन्स दैट इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे जाएगा, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। तो अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, दैट इज 3 plus x। अगर इसका स्लोप निकालने जाए तो स्लोप कितना आएगा, सो y इज इक्वल टू mx plus c, तो mx m इंटू एक्स प्लस सी आ गया, तो m कितना आएगा 1। तो यहाँ से बोल सकता है कि स्लोप इज इक्वल टू कितना आएगा 1 मीन्स व्हाट, दैट इज tan थीटा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, इसका वैल्यू कितना आया 1 आया, मतलब कि थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। मीन्स ये एंगल जो होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। ओके, सो आपको मैग्नीट्यूड पता है, एंगल थीटा भी पता चल गया, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू E0 cos थीटा आई कैरेट प्लस E0 साइन थीटा जे कैरेट। ओके, अभी थीटा क्या होगा, थीटा इज 45 डिग्री, E0 उसका मैग्नीट्यूड जो हमें दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 100 cos 45 दैट इज 1/√2 आई कैरेट प्लस दैट इज अगेन 100 1/√2 जे कैरेट। तो ये हो गया हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अभी डेल्टा आर के बारे में देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा आर देख लेते हैं, तो डेल्टा आर इज नथिंग बट दैट इज R2 माइनस R1। तो R2 कितना है, दैट इज 1,3 माइनस 3,1। सो 1 - 3 दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -2 एंड 3 - 1 दैट इज अगेन 2। ओके, सो -2 to 2 मीटर डन। तो ये हो जाएगा हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा पी डिस्प्लेसमेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस हम देख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। क्या हो जाएगा ई डॉट डेल्टा आर। सो दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इज ऑपोजिशन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय √2 आई कैरेट प्लस 100 डिवाइडेड बाय √2 जे कैरेट डॉट ये हो जाएगा -2 आई कैरेट प्लस 2 जे कैरेट। ओके, चलो इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा इधर। सो दिस वन इज 100 √2 आई कैरेट डॉट -2 आई जे कैरेट, तो ये कितना हो जाएगा, सो माइनस दिस वन इज 100 √2। ओके, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, सो -100 √2 आएगा, प्लस इसका आंसर देखेंगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी आ जाएगा 100 √2। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
Okay, so that is the very good example